Okay. Now, we are about to go into a session which is in a way one of the most key aspects of leadership. Leader as a communicator. Okay. How many marks would you like to give yourself as a leader in terms of communication, ability to communicate? 50 out of 100. Huh? 50 out of 100. 50 out of 100. Okay, it is my fault. I should have said out of 10 points. 5 points. Is there anybody who thinks that he or she is a total communicator? First of all, let me tell you, there is no person in the world who is a total communicator. It's a continuously evolving skill. Where does communication begin? In the mind, in your thoughts. Now, something which is not mentioned in the books, let me tell you. This is an input which I would like to give you out of the book. There are 5 directions in which a communicator thinks. We are talking about beginning of the communication. The 5 directions are, the first direction is what is called synthesist. Now, who is a synthesist? I am going to tell you 2 points about each of these directions. Okay? Synthesist means divergent thinker. In your group discussion, which will be there in the evening, or any other group discussion which you must have taken part, you must have seen there are some members who always take the group away from the subject by their contribution. And then people talk about them later on saying, अरे यार सब ठीक चल रहा था डिस्कशन, वो पता नहीं कौन से एंगल में सोचता है वो लेके चले गया. Now about such a member, on the second or third day the same group says, नहीं यार उस दिन वो बोल रहा था, हमने उसको सीरियसली लिया नहीं, लेकिन उस दिन ये बोला. These people are called synthesists. You know, when I was a student, there used to be some set of movies which I used to see. I'll tell you what set of movies. Those movies used to be on a Sunday, special shows. Those movies used to be such that you never understood the title also. I used to wear my Kolhapuri chappals and wear absolutely rumpled clothes and look very angry with the world and with the system and go and see those movies. The movies were always 9 reels or 10 reels. And let me tell you something, I never understood any of those movies. The movies used to begin suddenly and the movies used to end suddenly. Only thing is we used to find out that the movie has won President's Award. Now, we never understood those movies. Those movies are made by synthesists. Synthesists are very creative people. If there is a painting which you cannot understand, it is made by synthesists. If there is a poetry which you cannot understand, it's written by a synthesist. So, the first direction of thinking in communication is synthesis direction. Abstract thinking, and it's a divergent thinking. Second category, second direction in thinking is what is called idealist. Idealist thinking. Very, very welfare oriented, very, very keen listener, and very soft, very adarshwadi. That is idealist direction of communication. Third direction of communication is what is called pragmatist. Third direction. What is a pragmatist? You know, during the earlier part of my work in the year 1988-89,
I got a lot of assignments from Bihar. And all of them were in the mines. I used to invariably reach those places in the afternoon by train, reach the mine by evening, and go to the mine manager's cabin. And the manager used to always welcome me. आप आइए बैठिए, आपका गाड़ी आ गई था टाइम पर ना? हाँ, आ गया, धन्यवाद. His assistant used to come. Sir, माइन नंबर 4 का जुगाड़ है प्रोडक्शन का. After 2 minutes, the manager used to tell his peon, अरे डॉक्टर शास्त्री आकर बैठा है, हाँ, उनका चाय का जुगाड़ नहीं कर रहे क्या तुम? Second time I heard this word. माइन का प्रोडक्शन का जुगाड़, चाय का जुगाड़. After some time, after half an hour after I had my tea, आप जाके आराम कर लीजिए गेस्ट हाउस में. हाँ, तो सुनो गेस्ट हाउस का जाने का गाड़ी का जुगाड़ वगैरह है ना. When I used to go to the guest house, the guest house caretaker used to come and ask me, सर आपका रात का खाने का क्या जुगाड़ है? खाना खिला दो यार, जुगाड़ उगाड़ क्या है? The word जुगाड़, I came to know, is pragmatist way of thinking. Everything is managed, fixed. जुगाड़. So this is जुगाड़, pragmatist. It's called incremental thinking. अभी उनके बोलो कल ये कुछ करने हो तो कल की बात है ना, अभी क्या करना है आपको? लेकिन वो सब बातें देखेंगे, अभी कल. This thinking is called pragmatist. And then comes analyst thinking. Analyst is very rigid, very strong. Analyst किसी को गिनता ही नहीं. Analyst has a smile on the face. मेरी मुर्गी की एक ही टांग. मुर्गा खुद आकर दोनों टांग पर चल के बताएगा. But analyst can never believe that he is wrong. He is supremely in love with himself. He uses the words like, क्या नहीं होना काम? मैंने तो उसी दिन बताया था तेरा काम नहीं होगा. You tell him, I am going to attend an interview, तू select नहीं होगा. ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूं. Supremely confident. And the last is realist mode of thinking. Realist is also like analyst, but realist loves evidence, very low on trust. Realist. Very low on trust. But realist can be turned by evidence. Realist का एक ही गाना है, प्रूव करके बता दो. आप realist को कहेंगे, कल मैंने वो हैप्पी फील पिक्चर देखी है, बहुत अच्छी है. अच्छा, कब देखी तूने? कल 7 बजे का शो. अच्छा, 6 बजे तो तू मुझे वहां दिखा. You get absolutely upset and you say, तू ऐसे बोलेगा इसीलिए मैं तेरे लिए काउंटरफॉइल बचा के रखा हूं. He never believes in whatever you say. नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को तेरे पे भरोसा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं. That is the realist. So ये अगेन ये पांचों के पांचों थिंकिंग पैटर्न्स सभी में रहते हैं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन एबिलिटी यहां से शुरू होता है. ये हमारे कम्युनिकेशन एबिलिटी का स्रोत है. सिंथेसिस्ट, आइडियलिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, एनालिस्ट और रियलिस्ट. आप सड़क पे चले जाइए, आपको ये पांचों मिल जाएंगे. आप यहां पर जाइए और बोलिए, भाई साहब मुझे गेटवे ऑफ इंडिया जाना है. सिंथेसिस्ट कैसे बताएगा आपको क्या जाना है? गेटवे ऑफ इंडिया. अच्छा, आप ऐसा कीजिए, यहां से आप सीधा जाइए तो वहां पे आपको एक पेड़ मिलेगा, कम से कम 250 साल पुराना पेड़ है. उस पेड़ का हिस्ट्री में आपको बताता हूं. फिर वहां से फिर आप जाइए तो वहां से आप क्या छोटा सा मंदिर मिलेगा, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिए और वहां से आप जाएंगे. बहुत पुरानी बिल्डिंग है. एक्चुअली क्या है कि उस बिल्डिंग का हिस्ट्री ये है कि जब गांधी जी आए, भाई साहब 1 मिनट मुझे गेटवे ऑफ इंडिया जाना है. अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया, वो जो बिल्डिंग की बात कर रहा था ना, वहां पे खड़े होकर किसी पूछ लीजिए. He will never get a direct answer. Some people have this ability of communication. Idealist, you ask him, भाई साहब मुझे गेटवे ऑफ इंडिया जाना है. आइडियलिस्ट वैसे, आप कैसे आए हैं? आप ये वाला रोड मत लीजिए, बहुत सारे गड्ढे, इधर से जाइए. ऐसे बॉम्बे में विदाउट गड्ढा रोड डिफिकल्ट टू लोकेट.
बट इधर से उधर से। प्रैग्मेटिस्ट क्या कहेगा? कहां जाना है आपको? गेट वे भैया, सीधा जाइए, किससे पूछ लीजिए, he won't give you the full direction. Analyst will look you up and down and say, Gateway of India. Okay, अब आप ध्यान से सुनिए, यहां से आप सीधा जाइए 1.5 किलोमीटर, वहां से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट को जाएगा, एक राइट को जाएगा. You will see everybody taking the right route. You don't commit that mistake. You take the left route. और आप सीधा जाएंगे बराबर. इतना स्पेसिफिक है. बेसिकली क्या है कि तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सोच का ठेकेदार मैं. रियलिस्ट कहां जाना है? गेटवे ऑफ इंडिया. आफ्टर गिविंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, रियलिस्ट विल से, समझ में आया? यस. रिपीट करो. सो आप जब मनुष्य की बात करते हैं, अपने टीम मेंबर्स की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन का सारा खेल 5 डायरेक्शंस में निकलता है. इट इज द वे यू थिंक एंड देन इट कम्स डाउन ऑन टू योर माउथ एंड द वे यू स्पीक. इन विच लैंग्वेज डू यू थिंक? In which language do you think? In which language do you speak? Depends. Mostly, in which language do you speak? These are the barriers in communication. Most important thing, next slide. We'll come back to this. Next slide. How you begin the communication, how you sustain the communication. The role of the eyes. How many of you look into the eyes and talk? You must have had a very interesting youth. नहीं? पुराने दिनों की यादें मत लाओ. The power of the eyes in communication, right? Very, very important. Okay, sustaining. Are you a high screener or are you a low screener? बहुत सिंपल बात है. आपके चेहरे पर दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछ लोग चेहरे पर भाव दिखता ही नहीं है. आप उनको कुछ भी कह लीजिए. इंडियन एयरफोर्स में प्रोग्राम कर रहा था मैं. मेरा प्रोग्राम मटेरियल घुमा दिया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के असिस्टेंट ने. ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की उम्र थी 34 साल की, उसके असिस्टेंट की उम्र थी 54 साल की, लेकिन 2 रैंक नीचे था. मैं बैठा था. वो डॉक्टर शास्त्री का प्रोग्राम मटेरियल, नेक्स्ट डे प्रोग्राम था कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में. डॉक्टर शास्त्री का प्रोग्राम मटेरियल का कॉपी. सर, द कॉपी हैज बीन मिसप्लेस्ड सर. ये जो व्यक्ति है 34 साल का, ये 54 साल वाले को कहता है, यू आर अ डिस्ग्रेस टू द आर्म्ड फोर्सेस, पीपल लाइक यू शुड बी थ्रोन आउट, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर. ये 3 चीजें जो बोली गई, उसका उस व्यक्ति का जो चेहरा था, जो ये रिसीव कर रहा था, सब अब चले गए. मुझे बुरा लगा. मैंने कहा कि 20 साल उससे उम्र में बड़ा है, इतनी सारी बातें. मैं बोला एक कॉपी और दे देता मैं, इतनी बातें. तो दिस मैन स्टार्टेड लाफिंग. ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी. आपको उनके बारे में बड़ी फिक्र हो रही है डॉक्टर? मैंने कहा इतनी बार बातें, डोंट वरी. अब तक उसने अपने असिस्टेंट को किसी और गलती के लिए ये तीनों शब्द ट्रांसपोर्ट कर दिए होंगे. अगर आप ये समझते हैं कि वो लेकर बैठे रहेंगे तो दिल को लगा लेंगे, तो आप कृपया भूल जाइए, ये यहां का कल्चर नहीं है. आप में से नाटक में किसने भाग लिया है? आप में से किसने नाटक में बहुत ही हाव भाव वाली भूमिकाएं निभाई है? सबसे चैलेंजिंग भूमिका. डोंट टेल मी कि शहर के चौक में पुतले की भूमिका थी मेरी. बोलिए 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 बोलिए, सबसे चैलेंजिंग रोल किसका था?
नट सम्राट में सुधा का रोल किया था। नट सम्राट में सुधा का रोल, उसमें हाव भाव बहुत है चेहरे पर। हमको झलक दिखाएंगे डायलॉग नहीं, मुश्किल है अभी। गुजराती ड्रामा में क्वीन का रोल किया था। गुजराती ड्रामा में क्वीन। क्वीन, महारानी। ग्रेट। और कौन सा रोल? और बहुत सारे हाथ। अब जैसे मैंने कहा कि प्लीज शो, सारे हाथ बैठ गए। बताइए। सर मैंने डॉग का रोल किया था, कुत्ते का। अच्छा, एक सिंगल पसली हड्डी का रोल, लेकिन गुंडा थी। ओके। और ये सारे के सारे लोग जिन्होंने ड्रामास में रोल किया है, उनको सबसे बड़ा फीडबैक डायरेक्टर ने क्या दिया जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे? तो आमतौर पे बात करते समय आप अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हो क्या? मॉनिटर करते हो? जो लोग लो स्क्रीनर रहते हैं, उनके चेहरे पर उनके फीलिंग्स दिख जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंदर क्या हो रहा है चेहरे से कुछ पता ही नहीं चलता। दे आर दी हाई स्क्रीनर्स। आप कौन से हो? लो। किसने कहा? आप में से लो कौन है, हाई की कौन है? ये ऑडिट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या है कि मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग हाई है उनको भी लो बनना चाहिए। अपने चेहरे में हाव भाव लाइए। और अगर मैं जेडीएफ के ऑफिस बेयर्स को अगर एक सजेशन दूं, तो आप कृपया अपनी गतिविधियों में सीरियस कामों के अलावा अगर आप मनोरंजनात्मक काम कर रहे हैं तो प्लीज ड्रामास ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव द कम्युनिकेटिव एबिलिटी ऑफ द पीपल। आप में से कितने लोग इमोशन दिखाते हैं चेहरे पर? आप में से कितने लोग गुस्से के शिकार हैं? सब नहीं, काबू से बाहर नहीं, वायलेंट नहीं, काबू से बाहर। आप में से कितने लोगों को आपके जो प्रियजन हैं वो लोग बताते हैं कि आपकी गुस्सा उनके लिए समस्या है? देखिए, जितने लोग चेहरा उठा के सब कितने प्लेजेंट फेस से, यानी अंदर ही अंदर क्या है वो दिख नहीं रहा है। फॉर अ कम्युनिकेटर, ऑन अ सीरियस नोट, लेट मी टेल यू, एज अ लीडर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो चेहरा है दैट शुड बी अ लो स्क्रीनर। तो पहला जो है, आपके अंदर पांचों के पांचों शैलियों की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा आपका चेहरा लो स्क्रीनर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड। हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड लिसनर्स? अब आप ये मत कहिए कि सुबह से आप देख रहे हो। इससे ज्यादा गुड लिसनर और क्या हो सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? लेवल 1 लिसनिंग के 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 में, जिसको कहते हैं बेसिक लिसनिंग, जो आमतौर पे हम करते हैं, मैं आपसे मिलने आया और आप अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, आप तो बोलते जाना मैं सुन रहा हूं। दैट इज। अब किन परिस्थितियों में आपने ये करना चाहिए आपके ऊपर है। नेक्स्ट कौन सा है? फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग। आप जो कुछ काम कर रहे हो वो छोड़ देते हो और आप उनकी ओर देखते हो, और वो जो कुछ कह रहे हैं उनको आप, लेकिन चेहरे के हाव भाव अभी भी चेंज वैसे नहीं। थर्ड, एडवांस लिसनिंग, टोटल अटेंशन। अब आप उनको ये कह रहे हो कि वो जो भी कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, आप ये उनको सिग्नल दे रहे हो। और चौथा है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। कोई आपके पास में आया बहुत अपसेट होकर, क्या हो गया?
नहीं क्या हो क्या गया लेकिन? हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। Now compare this with, क्या हो गया? ये तो होना ही था, ये तो अभी और होगा। हमको आज आने को किसने कहा? So we'll talk about it tomorrow, the actual emotional aspect of it. But basically, आप में है क्या वो चीज? अगर नहीं है तो आपको मैं कहता हूं बच्चों को कभी आपने कहानियां सुनाई है क्या? दैट इज द टफेस्ट असाइनमेंट इन द वर्ल्ड। अगर किसी भी सेट ऑफ बच्चों को अगर आपने आधे घंटे तक कोई कहानी सुनाई और बच्चों ने एंड में ताली बजाई, यू शुड बी गिवन अ मेडल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ वेरी इंसल्टिंग मैनर 5 मिनट के अंदर बच्चे सीधा आपको बता देते आप बोर मार रहे हैं, जो बड़े लोग नहीं बताएंगे और सुबह से लेकर 4:15 तक सुनेंगे बैठ के और लेकिन बच्चे वैसा नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे वैसा नहीं करेंगे, ठीक है? हमारे में भी एक बच्चा है। हाँ जी, हमारे में भी एक बच्चा है। नहीं नहीं वो बच्चा कहाँ है, आप बच्चा कह रहे हैं। ओके, so on a serious note, now how many of you feel that you are good in reflective listening? Whatever it is, I'm sure you are. So let's see. माइक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूर जो बैठे हैं उनको इनके चेहरे दिख रहे क्या? प्लीज अपना मोबाइल बंद कीजिए, आपको नहीं सुन रहा है तो हमें डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पर जो आए हैं हम, तो सामने वाले लोगों ने लाखों रुपए खर्चे किए इसका। आप कंप्यूटर को ऑफ कीजिए, आप थोड़ा देखिए, 1 मिनट, लेट्स सी द फेस। तब तक आप मैं संजय औरंगाबाद से था पहले, अब पिछले 2 सालों से बम्बई में रहता हूँ। हाल ही में बड़ी अच्छी सी फिल्म देखने में आई। अच्छा, मूवी देखने का शौक रखते हैं? थोड़ा थोड़ा कभी कभार जब समय मिल जाता है तो देख भी लेते हैं। नहीं, मुझे तो खैर टाइम ही नहीं मिलता मूवी देखने का। खैर आप बताएं कौन सी मूवी देखी आपने? लगे रहो मुन्ना भाई, आपने नाम सुना होगा। हाँ, नाम तो सुना है, कुछ गांधीगिरी के बारे में बातचीत की। बड़ी बड़ी मस्त पिक्चर है। क्या है? ऐसे गुंडे की कहानी है जो अपने आप में किसी विषय को समझने के हेतु या किसी को इम्प्रेस करने के हेतु, इस लड़की को इम्प्रेस करने के हेतु गांधी जी के बारे में कुछ जानना चाहता है और इतना पढ़ लेता है कि उसके अंदर से उसकी आत्मा उसको कहती है कि गांधी जी ने इस तरीके से सलाह दी होती और वो उस तरीके से बर्ताव करना शुरू करता है। मतलब सपोज वो फील करता है गांधी जी उसके सामने है, ऐसा कुछ? हाँ, उसको हमेशा दिखते रहता है और उसको अकेले को दिखता है। सिर्फ अकेले, उसके मन की बात है ना? हाँ, ये उसके मन की बात रहती है शायद, और उसको अकेले को दिखता रहता है कि गांधी जी उसको ये सलाह देते और हमेशा वो उस सलाह पर चलने का प्रयास करता है। उसमें से एक मुद्दा आता है कि अगर हमको किसी चीज के लिए प्रयत्न करना है तो हम उसके लगकर उसको बिल्कुल उसके पास जाए और कोशिश करें कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी बात को उसकी बात समझकर समझे। पूरी स्टोरी इतनी छोटी सी बात पर है। पूरी 3 घंटे की मूवी इसी पर बना दी, पूरी 3 घंटे की, और आप 3 घंटे तक देखते रहे और बाद में भी चलते रहे। बहुत जोरदार, बहुत आपने जोरदार। 3 घंटे देखी? हमने देखी 3 घंटा और शायद हमारे साथ में जितने भी लोग थे सबने देखी और सबने देखी और बिल्कुल बार बार देखने की इच्छा करें। आप ये मौका मिला तो मैं भी देखूं। बिल्कुल देखना, सर्किट को जरूर याद करना। आप तो नहीं ना? चलो, इसमें एक चीज तो पता चल गई कि कम से कम दोनों साथियों में से कम एक साथी जो है वो लो स्क्रीनर निकले हैं। आई एम पर्सनली हैप्पी विद द रेंज ऑफ इमोशंस व्हिच यू हैव डिस्प्लेड। माय फोकस वाज नॉट हाउएवर ऑन यू, माय फोकस वाज ऑन हिम। इन्होंने कहा है कि ही इज अ लो स्क्रीनर,
लेकिन लो स्क्रीनर की सबसे बड़ी, ये इन्हीं के लिए नहीं है, सभी के लिए है, कि हर वो जब सामने वाला बात करता है तो उसके शब्दों के प्रवाह और उनके वाक्य के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए आपने बिल्कुल उतार चढ़ाव आपका होना चाहिए। आपके चेहरे पर ऐसे हाव भाव दिखना चाहिए। दैट शुड बी देयर। इसलिए अब मैं, और किसने हाथ ऊपर उठाया था? आप बैठे रहिए, आप आ जाइए और मैडम आकर आपको कुछ बताएंगी और आपके चेहरे पर हम फोकस करेंगे। आप इनको बताएंगे, इनके चेहरे। All of you, please focus on our friend here. Loudly, micro. मैं कल गई थी लोकल में, वहाँ पे जो हुआ वो मैं आपको बताई। वहाँ अरे लोकल में तो कभी जाती नहीं मैं, उस दिन मैं गई, लेकिन क्या बताऊँ आपको, इतना भीड़ था कि पूछो। लोकल में तो वैसे भीड़ रहता ही है, आप शायद बॉम्बे के लिए नहीं है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अच्छा बताएं आप क्या कहना चाह रहे थे? तो वो भीड़ में क्या हुआ पता है आपको? वो भीड़ में एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा सब औरत के बीच में दब रहा था और वो इतना जोर जोर से रो रहा था, इतना जोर जोर से रो रहा था। फिर हमने क्या किया पता है? हमने उस बच्चे को उठाया और ऊपर पकड़ा, तभी जाके वो बच्चा जरा ठीक ठाक हो गया। इतना भीड़ तो मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। ऊपर उठाया मतलब आप लोग उसको इंस्टेंट ऊपर लिए रहे पूरे ऑन द टूर? नहीं, पूरे टूर में थोड़ी देर के लिए आपने बुकिंग उसको स्टॉप के बाद तो उस औरत को हमने उतार ही दिया वहाँ से, तभी हम आगे जा सके। तो एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई होगी, उसको जहाँ जाना था वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाई, आपने स्टॉप। वो थोड़ा सा फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लेवल इज वेरी गुड। फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग, चेहरे पर थोड़ा सा हाव भाव, और चेहरे पर हाव भाव बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइजेस नहीं है, एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन व्हाट एवर इज इट, दैट्स ऑल। अगर किसी चीज ने हमारा चेहरे पर हाव भाव और लिसनिंग में लेवल 4 डिस्ट्रॉय किया है, बंद कर दीजिए। अब सूरज डूब रहा था और रास्ते में और कोई व्हीकल था नहीं, गाड़ी बंद पड़ गई। मैं गाड़ी से बाहर निकला और चेक कर रहा था क्या हो गया। तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली अंदर से मुझे इशारा कर रही है, समझ में नहीं आया क्या हो गया। फैमिली बार बार बोल रही थी कि, सब बच्चे वाइफ सब बोल रहे थे कि पीछे देखो पीछे देखो, तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। फिर मैंने पीछे देखा तो आके खड़ा था। तो सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? और तो सुन रहा, मैं सुन रहा हूं। क्या बोला मैं? अभी तो बोल रहा था कि शाम को सूरज डूब रहा था, तो बोरेली में था और गाड़ी बंद पड़ गई और वो पीछे आके खड़ा था। Does this satisfy you? You need emotion. You need empathy. Listening is much more than only hearing. आपके अंदर वो रहना चाहिए, and that is the main thing. Right balance between assertiveness and listening. Emerge out of ourselves. मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, ये कहने वाला व्यक्ति कभी भी लीडर नहीं बन सकता। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको एक नया आदमी बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके अंदर एक रिन्यूअल होने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं 50 साल का हूं, मैं 55 साल का हूं, मैं 45 साल का हूं, मैं 60 साल का हूं, मैं क्यों रिन्यू करूं अपने आप को? मैं रिन्यूअल का कोई एज लिमिट नहीं है। रिन्यूअल स्टार्ट्स द मोमेंट यू आर बॉर्न। देयर इज अ नीड फॉर रिन्यूअल। कई बार व्यक्ति को एक प्रकार से पुनर्जीवित होना पड़ता है, नई नई कलाओं के साथ विकसित होना पड़ता है। मनुष्य के विकास की यही कहानी। और इसमें सबसे पहले एमर्ज आउट ऑफ आवरसेल्व्स। हमें यू शुड स्टॉप फीलिंग टेरिबली गुड अबाउट योरसेल्फ। से और भी सीखूंगा, मेरे अंदर और लिसनिंग सीखूंगा और एसर्टिवनेस। आप में से अब एक और दूसरी कला है, एसर्टिवनेस।
आप में से कितने लोग हैं जो कभी कभी 2-2 डिनर इनविटेशन लेके बैठ जाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनको किसी को ना कहना मुश्किल है? आप में से कितने लोग हैं जो आसानी से ना कह देते हैं? No, depends on the situation. I mean, basically what I mean to say is that how many of you are by character, not habit, by character non-assertive? आपकी आवाज में ही जोर नहीं है. How many of you are soft-spoken, self-image, mrudubashi? And how many of you are absolute bulldogs? Self-image again. और बाकी जो लोग हैं, बाकी जी To become a better communicator, you have to understand that you are communicating for the sake of others. You are not communicating for yourself. तो आपको लोगों को देखकर अपनी कम्युनिकेशन की कला बदलनी पड़ेगी. तो ये सब चीजें कैसी विडंबना है ना, हम लोग हॉस्पिटल्स में नहीं करते ये. किसी सीरियस मरीज के पेशेंट्स को आप लोगों ने कभी हैंडल किया नहीं है, या अपने रिलेटिव्स को आपने कभी हैंडल नहीं किया? कभी आपने अपने इमोशंस को काबू में नहीं रखा जब मरीज के रिलेटिव्स आकर आपको अनफेयरली बोलते रहते, आपने ऐसा किया वैसा किया, और उस समय आप चुपचाप बैठते हो? इट्स अ कॉमन थिंग. इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि उन सब कलाओं को आप बाहर निकालकर अलग क्षेत्रों में भी लगाएंगे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you should not suffer from empathy fatigue. Empathy has no tiredness. Empathy should not fatigue you. आप कभी भी ये मत कीजिए मैं कितना अंडरस्टैंडिंग दिखाऊंगा. एम्पैथी जब तक नहीं दिखाएंगे आप, तब तक आप टोटल कम्युनिकेटर नहीं बनोगे. You cannot become and you will not become a total communicator. In today's world, empathy is the key factor. अगर आप में एम्पैथी अगर हो, यू विल सिंपली शाइन एज अ कम्युनिकेटर. एम्पैथी इज द अल्टीमेट चैलेंज, क्योंकि एम्पैथी अपने अंदर विकसित करना इट्स नॉट वेरी इजी. नेक्स्ट. Sir, how can we explain empathy? एग्जाम्पल देता हूं. एग्जाम्पल, मैं आपके साथ में आपका दोस्त हूं, हम दोनों बात कर रहे हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं आजकल बहुत थक जाता हूं यार, जो प्रोग्राम्स है ना, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक कितना मुश्किल हो जाता है ना कभी कभी. वही चपर लगातार वही, इधर स्ट्रेस मैनेजमेंट, उधर लीडरशिप. अब ये आई एम शेयरिंग विथ हिम. व्हाट विल ही से? इफ ही इज नॉन एम्पैथेटिक, व्हाट विल ही से? तो मैंने बोला था क्या तुमको? नहीं, ऐसी बात नहीं है. तेरे को नहीं जमता तो छोड़ दे. नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? मैंने मैं रो नहीं रहा, तेरे से बात कर रहा हूं मैं. Now I am explaining why I am saying this is non-empathetic approach. Second approach is what? क्या बात कर रहे हो? नहीं तो टेक अ ब्रेक ना, हो सकता है नहीं तो 15-20 दिन थोड़ा ब्रेक ले. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. और ये जो तू बोल रहा है ना, ये मेरे भी साथ में होता है कभी कभी. शायद इतनी डिग्री में नहीं होता, लेकिन होता है. बट डोंट वरी, इट्स अ पासिंग फेज. ये जो दूसरी भाषा बोलने के लिए कोई विशेष मेहनत करनी पड़ती है क्या, या उठक बैठक करना पड़ता है व्यायामशाला में जाके कि ये कोई नई कला मैं सीखूं? ये अंदर की बात है.
ये चीज या तो हमारे में है या नहीं है। लेकिन हम लोग इतने क्रूर बन गए हैं आजकल कम्युनिकेशन में कि हम लोग एक सुई लेकर हाथ में रहते और सामने वाले के फुग्गे फटाक फटाक बच करते रहते बस, और उसी में हमारे को मजा आती है। सॉरी, आप में से कोई ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं। ये घर में भी लागू होता है, काम पर भी लागू होता है। कोई भी आपको आकर अगर कोई भी बता, द प्रॉब्लम इज हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसकी परिस्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा ही नहीं उसने राय, ही ओनली एक्सपेक्ट्स यू टू शेयर। Is it not a natural process to show this empathy? Is it so natural? I am not needed then. Yes. अगर इन्वॉल्वमेंट है उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में तो ये नहीं तो मैं आपको डांट दूंगा ना, तेरा प्रॉब्लम है कि तू क्या करता है, काम बहुत ले लेता अपने ऊपर। नहीं तो ऐसा है कि उसको उस समय आपके डांटने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप सुन लीजिए ना। आपको चिंता दिखाने के लिए, डांटने के लिए किसने कहा? आप सिर्फ चुपचाप सुन लीजिए, लिसन विद एम्पैथी। क्या बात कर रहे हैं? और आपके मन में बहुत ऐसा आता होगा, इसको आज मैं ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा। रुक जाइए, ये वक्त नहीं है बोलने का, अभी सुन लीजिए। एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बन जाएगा, अगले बार वो आपको बोलने की अनुमति देगा, क्योंकि आपने उसको पहले बार बोलने की अनुमति आपने दी। लेकिन हम लोग कहां संयम दिखाते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, तेरा तो यही प्रॉब्लम है, तेरे को तो मैं उस दिन भी बोला था, एनालिस्ट। ये बार बार यही बोलना पड़ता है, काय के लिए करना है सब प्रोग्राम, और फिर बात यही खत्म नहीं होती। इनको बोल के इनसे मिलता हूं, वो आया था, उसको समझा दिया मैंने। एंड व्हेन ही कम्स टू नो दैट आपने ये जो इंटरनल टेप वहां प्ले कर दिया है पब्लिक में, तो ये अगले बार आपके पास में एम्पैथी की तलाश में नहीं आएंगे। दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स आर फिनिश्ड और अपॉर्चुनिटीज आर लॉस्ट। अ लीडर नीड नॉट डू एनीथिंग, just listen. Those people who cannot listen cannot be a leader. Simplest definition of leadership is what? When one person is speaking and the other person is listening, both are showing leadership. Next slide. Any questions on communication? I think the other points which may be relevant or important in conversation would be eye contact, smiling face, or A total involvement. That's what we meant. But in particularly eye contact as its own meaning. Eye contact, nodding, and in tune with the content. And then genuinely, rather than showing grammatical Yes. genuinely involved. And one more thing is, whenever it is permissible, not expecting putting hand on shoulder or taking hand on the hand. That really conveys a lot of warmth. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डॉक्टर साहब ने कही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टचिंग। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट एट द सेम टाइम आई वुड रादर लीव इट टू योर जजमेंट। नो परमिसिबल। बीच में एक रिसर्च फाइंडिंग आया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में, कि ईदर हस्बैंड और वाइफ अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, अगर दोनों ने एक में का हाथ पकड़ा सिर्फ, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। इन मुन्ना भाई MBBS वी सॉ द इंपॉर्टेंस ऑफ जप्पी। समटाइम्स अ पैट ऑन द बैक मीन्स अ ह्यूज ट्रॉफी टू द पीपल, बट द पॉइंट इज दैट शुड बी known to us. But as Dr. Saab has said, it's very correct. It should be a total involvement. Eye contact. You should give the feeling to the person that you are giving him importance. Listening क्या convey करता है? That you are giving him importance. I have 4 good friends. One day I asked myself,
why these four have become my good friends? Why not many others? And I came to know a basic fact of life. These are the only four fellows who listen to me. So I got attracted towards them. I said, बाकी लोग उससे actually attract हुआ. बाकी लोग मुझे बोलने ही नहीं देते, ये बोलने देते. So it's very simple. Am I right? Huh? So you are all my good friends, नहीं? सर जी आपको मेरा सुनना पड़ रहा है. सुनना पड़ रहा है और सुनने में बहुत फर्क है. Anyway, that's a different thing. Any questions on basic? Tomorrow we will see part 2 of the communication for the leader in the context of handling the members. Okay? So there are a lot of tips which are about yeah. How to tactfully terminate a useless discussion or unwanted discussion, out of context discussion, politely. Are you trying to throw a hint to me? Okay, jokes apart. Now, आप कैसे करेंगे बताइए? आप कैसे करते हैं? Without the Okay, first of all, let that person complete the sentence. Very important point. You should keep on listening to that person, keep nodding, and wait strategically for that part when the sentence is complete. And just before he begins the next sentence, immediately take charge and say, exactly. And I completely agree with you. In fact, this is so interesting that we will definitely listen to this in a different way and next time. And ladies and gentlemen, I join you in giving this person a big hand. You are not insulting that person. What you are trying to do is you are recognizing the value of what he has said, but at the same time you are also you are not throwing any hint to the person, but at the same time you are saying that we should move on and we should definitely But do you face such situations in your chapter? particularly in your clinic itself. आपके क्लिनिक में होता है? Patients, I am a pediatrician. So many of the parents would come and they would, out of the context, they would talk many things. नहीं सर, ये आपने बहुत गलत किया. ये एग्जांपल देके मैं आपको एक बताता हूँ. आपके पेशेंट्स के लिए आपने थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ. आपके प्रैक्टिस में वो शायद हो सकता है कि टाइम का प्रेशर होता होगा, लेकिन आप उनके लिए क्या हो या आप नहीं जानते. आप केवल पीडियाट्रिशियन नहीं हो. यू आर अ साउंडिंग बोर्ड फॉर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ. एंड आपसे बात करके उनको कितना अच्छा लगता है ये आप भी नहीं जानते. और अगर उनके साथ में ऐसा किया तो मेरा दिल आप तोड़ दोगे. नहीं, इट्स वेरी सिंपल. ऑल्दो यू आर जस्टिफाइड कि मेरे पास बाकी भी चीजों के लिए टाइम है, मुझे ही क्यों चुना गया, क्योंकि और कोई है ही नहीं. यू प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर द पीपल who don't have many people in the life. You are misunderstanding. What I mean is out of context things, which may not be relevant topic. It is always irrelevant. Relevance देख के कौन आता है? मैं आपके क्लिनिक में आके बताऊंगा आपने मेरा बच्चा देख लिया, उसके बाद में बोलूँ और डॉक्टर साहब और यहाँ आजकल तो बड़ा चल रहा है, मैं आपको बताऊं सुबह से लेकर शाम तक ये मगजमारी. दिस इज ऑल इररिलेवेंट टू यू. आपको लगता है कि ये जाता क्यों नहीं है, इसका हो गया, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, जाता क्यों नहीं है. मेरे और भी 4 पेशेंट बैठे हैं. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्लीज ऐसी परिस्थिति में प्लीज मेरे साथ में थोड़ा पेशेंट हो जाइए, क्योंकि आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसके साथ में मैं थोड़ा सा अपनी मन की व्यथा बोल रहा हूँ. अगर आप मुझे दरवाजा बंद कर दोगे तो फिर मैं किसके भी पास में अगले बार नहीं बोलूंगा. ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. I'll tell you something. There are a lot of people who are in borderline clinical depression, not only because they have nobody to talk to. And if you as a doctor suddenly say it's irrelevant, it's a very cruel thing. That's the point I'm making. Although you are justified, मैं underline कर रहा हूँ, although you are justified, but it's an additional role which one has to play. That's all. But sir, in fact, 90% is always irrelevant, and we are habituated to it because we know that brings him again and again. You will just say that मेरे क्लिनिक में लोग बार बार आते मेरे ट्रीटमेंट के वजह से नहीं, लेकिन उनकी जो मैं सुनता हूँ उनकी कंप्लेंट्स नहीं रहती, वो एक्चुअली सुनाने आते हैं. So it's a treatment.
psychiatrist friends, sorry. Okay. I have two friends who are psychiatrists, and they both, I find, वो लोग ऐसे निपटाते हैं. And many times I say that तुम लोग ऐसे क्यों निपटाते? Please talk to them. Appoint counselors who will give them time. This is something which we must really, understand. What happens sometimes, what you said in the second part, that he might not be finding anybody else to listen him. Yes. And others wanted to avoid him and he is not able to express. Yes. And you give him some importance and you become his friend. वो आपको दोस्त करके देख रहे हैं. अब ये ठीक है अपने लिए इट्स लाइक अ लोड, बट नहीं सर, ऐसा भी होता है कि वो आपसे, आप एज फिजिशियन, वो आपसे, ग्रैंडफादर भी आपसे शेयर करता है, फादर भी शेयर करता है और बेटा भी शेयर करता है. वो तीनों का कॉन्फिडेंस आप में होता है, तभी आपसे बात करता है. वो और किसी से वो बात शेयर नहीं कर सकता, वो डॉक्टर से ही शेयर करता है. और आप बॉलीवुड की 1950 में जितनी फिल्में आई उनमें जो डॉक्टर अंकल बताते वैसे बन जाते थे. That's the role which family physicians played once upon a time, and that is the role of a leader. यानी घर में लड़की के लिए लड़का चुना तो अमंग द पीपल जिनका अप्रूवल लिया गया वो डॉक्टर पे था, नॉट एज अ फ्रेंड. ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द फैमिली. Many people nowadays say that एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास आजकल टाइम नहीं है. पेशेंट की क्यू इतनी रहती है कि दे हार्डली हैव एनी टाइम एंड दे डोंट लिसन पेशेंटली. Where the homeopaths are successful because they devote half an hour, 30 minutes to listen to the patient's complaint. Because 60% of diseases are psychological, and they require to be listened. I hope you have sent this statement to Dr. Ramdas. Okay. Okay, now, leader as a strategic thinker. This is the concluding part of our day in terms of leadership inputs. A leader has to be fully tuned into the future. A leader has to be a creature of the future. Creature of the future. You cannot live in the past. You cannot even live fully in the present. You have to be fully into the future. And you have to be fully prepared for the future. There is no time for you, whether you are 45, 50, 55, 60, 65, whatever is your age. There is no time for you to feel, ab mujhe in sab cheez. No. In many cities, I also address Jyeshtha Nagarik Mandal, the senior citizens associations. And there I find people at the age of 80 asking me after the program. I have tears in my eyes. You know what they say? Okay, doctor, how should I plan the next 5 years of my life? And I also meet people who are 40 and 45 who talk in the language of giving up, who are half their age. So at the end of the day, it's up to you. The key is with you. Age is irrelevant. Calendar is irrelevant. What is most important is future is there. It's all the more important for a leader to finalize his opinions or her opinions, his views or her views on a very important aspect. Technology versus values. This is the battle of this century. It is going to decide the future of mankind. You are already seeing the extent to which technology is dominating our life. You understood? People are, instead of talking to each other, SMSing to each other. Whether it's right use, wrong use, technology should always be your slave and not the other way around. You should have time for nature. You should have time for hobbies. You should have time for people. You should have time for the family. Or jo time bach gaya, that should be for iPod or that should be for the laptop. You should not let technology overtake you, because at some point or the other, values are today coming into focus. Human values are today
becoming, the shadow of technology is falling on the values, and that is not acceptable. Everybody here understands what I'm talking and knows what I'm talking. Okay? I don't have to elaborate and prepare a slide on that. Our approach should be whether it should be proactive or whether it should be reactive. Who will decide? Are you going to wait till something happens, or are you going to take steps? If you have children at home who are in the age group of 5 to 15, that's the right age to develop this. Technology versus values. Children are still playing games, handling gadgets. They are fascinated by the technology as a technology. Their values are not yet getting on board. But my problem is today the amount of time children spend on the gadgets and less time they spend on the sports field, on playing football, where they learn group dynamics, where they learn team dynamics, where they learn leadership, where they learn how to handle success, where they learn how to handle failure. If that kind of a thing is not, technology is going to make our life pseudo comfortable. I am very happy that your philosophy deals with lifestyle stabilization, eating the right food, and moderation. These are the key inputs which we also deal in stress management. Whenever my family says once in 15 days, reluctantly, वो मुझे जो ड्रैग करके लेके जाते कभी कभी 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार, I try to make it as rare as possible. वो मैकडोनल्ड वगैरह में जब मैं जाता हूँ, वहां पर का पूरा माहौल देख के I sometimes feel that, like, is it really good for the society? We don't have to get everything from there. But anyway, that's a different issue altogether. Not an exotic option, but a necessary habit. Leadership as a leader, as a strategic thinker, is not an exotic option. It has to be a habit. You have to always talk future. एक अभी किताब आई है, I think I'll give you the details tomorrow. It's by William Friedman. It's about 20th century. It's about how technology and values are dominated. It was the bestseller of last year. I don't remember the name. I'm trying to get you the name tomorrow. But that book considers, it's a beautiful book about how gadgets are dominating the. I'm told that in Bangalore there are apartments. The moment आप घर जा रहे हैं तो आपने सेल फोन पर ही आप नंबर एक पर्टिकुलर डायल कीजिए कोड, तो आप जब तक जाएंगे तब तक आपका माइक्रोवेव ऑन हो गया रहेगा, फ्रिज में ये हो गया रहेगा, ये हो गया रहेगा, वो हो गया रहेगा, पानी भी गर्म हो गया रहेगा. डू यू रियली? इट्स अ क्वेश्चन. टेक्नोलॉजी तो विकसित होते रहेगा, हमको डिसाइड करना है कि वो चीज हमारे लिए कितनी हमारे जीवन में उसको जगह देना. टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं करना चाहिए, हमने डिसाइड करना चाहिए. कोई और राय हो तो बताइए. यहाँ नहीं मालूम नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी. ये बहुत विशेष साइकिल है विनाश और विकास का. ये तो जो निर्माता बनाया है अपने को, उनका जुरिडिक्शन में आता है. मैं साथ में नहीं चलो ऐसा बोल रहा हूं, या फिर मैं बोल रहा हूं कि आप डोमिनेट मत करने दीजिए. दैट्स व्हाट बहुत डोमिनेट करती है. मैं एग्जांपल दूं कि रात को अपन घर जाते हैं, डिफेंस भी बंद किया, अपना लेकर डिनर किया, एंड वाइफ वांट्स टू से समथिंग टू यू, and you are going to बात थक के आया हूँ 3-4 घंटे को, you put on the news or Discovery Channel and wife says something and you always wife सर उस समय वाइफ क्या कहती है, आगे की तो कहानी बताइए. ये तो बोल दिया आपने. इट इज नॉट सच अ इतना फैमिली नहीं, इट्स अ थ्रिलर, इट्स नॉट अ फैमिली मूवी. इसके बाद में थ्रिल शुरू होता है. बट शी इज राइट. बट व्हाट यू ऑल्सो आर राइट कि उन्होंने अपने सीरियल देख लिए. Today the biggest challenge is, I am not against entertainment, I am not against technology.
I'm not against progress, I'm not against development. I am only requesting all these things should be in perspective, in the perspective. जैसे मेडिकल फील्ड में भी कहा जाता है कि क्लिनिकल acumen of physicians and surgeons today is actually becoming clouded by over reliance on gadgets. And that should be a cause of concern. I mean, basically because हम लोगों का रोल कम कर हो गया, तो I mean ultimately I mean it's meaningless. I think the most joyful experience is when you diagnose something right. And it's the most beautiful experience, clinical diagnosis. And that is the most important thing. So it is applicable in business also. Technology cannot take over. Huh? Technology cannot take over. Should not take. We, at least that choice we make, no? At least that choice we make. Sir, it is said that comfort comes as a guest, lingers to become the host and then enslave you. Okay. Now if a guest does to you this, how will you treat it? That's what. You will interfere in the second stage. You will say that, you know, आप guest बन के आए हो, guest बन के रहिए. Don't try to dominate my life. And that is precisely what is the story of technology. But most important thing, I would like to put the focus back again, that don't let the values get affected. And यहाँ पर, before I conclude, I would like to share with you certain things, that at what stage in your family, in your home, you should start talking to family members, especially children, about various health hazards, talk to people openly. Because हमारा समाज, हमारे परिवार अब एक मामले में अब विकसित हो चुके हैं. मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार में अब ऐसा कोई कॉइनेस या ऐसा कुछ है. Openly things are being discussed, and that is the very good thing. And use that opportunity and do not postpone the answers of any questions of the children. My daughter, who is all of 6 years, made my life miserable after watching a movie in which Preeti Zinta and Saif Ali Khan were there. She just wanted to know, how did Preeti Zinta become pregnant? And my wife was horrified. She handed over the file to me. I must say, as a father, I postponed the file for many days. And somehow I have diverted the attention. Still the question keeps coming back to me whenever that song comes. Papa, अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. And frankly speaking, there is no bottom line here. I cannot say that, you know, what I am doing it right or you should do it like me. No. These are some of the challenges of our times. But I am not an advocate of, ऐसा है क्या? तो बच्चों को ऐसी फिल्म दिखाओ मत. Sorry, this question used to be put to me many times. Cable TV बंद कर दो, ये बंद कर दो. More than बंद कर दो, I am not saying दिखा दो. I am saying we develop the discrimination ability in the children of what is right and what is wrong. Because the most harmful thing is curiosity. Curiosity, you require to have the age, the right age to handle. And in matters like that, where you have to facilitate the growth of the children, and when they come face to face with technology, your leadership as a strategic thinker really becomes a challenge. So we'll spend about 5-10 minutes answering any questions on today's inputs. We have a very, very busy morning tomorrow, in which we will be discussing various other things applied to team and various other questions. We'll also see how to look at our own family as a team. That's an additional input I will include after the requests which have come today. That basically how to treat family as a team, not as a family, as a team, and how to apply the various norms and principles. Any questions?
this is your plan. If you are a strategic thinker, yeah. As you said, Yeah. inquiry of your daughter, if you are not able to number of times. And so I know the answer. I am not able to communicate them. How to? No, you have to use a very discretionary judgment. I mean, that's why basically you should, if you have to give the information, you should give it without making a great song and dance about it. Make it look as if it was a normal information which was sought and just tell her. Rather than, oh my God, kya puch liya tumne? I mean, that means the child thinks, oh, something is terribly wrong with me and I should not have, and all these things should not come into child's mind. And that's why I said, you have to help the people read the future in a non-threatening way. And the wrong way is, तेरी ये सवाल पूछने की मत कैसे हुई? Finished. You वही सवाल नहीं और many other questions she will never ask. Examine preparedness objectively. How prepared you are as a family. Forget about, and as a business. Be patient with those who feel threatened. Not everybody can. Computers, for example, is one thing. There is a particular category of stress which is called techno stress. People don't share it. But people